کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک فوج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گی۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا واضح موقف۔ فیلڈ مارشل نے ضلع کرم میں عید فوجی جوانوں کے ساتھ منائی اور ہر قیمت پر ملکی دفاع کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج ضلع کرم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جوانوں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ کور کمانڈر پشاور کی جانب سے استقبال کے بعد فیلڈ مارشل کے عید کی نماز ادا کر کے ملک کے استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ بعد ازاں جوانوں کے ساتھ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ آپریشن میں غضب للحق میں دہشت گرد نیٹ ورک سے خاتمے پر عسکری کامیابیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہی ہماری کامیابی کی ضامن ہیں۔ فیلڈ مارشل نے یہ بھی اعادہ کیا کہ سرحد پار سے سرگرم دہشت گردوں کو ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر! پاکستان! نعرہ تکبیر! پاکستان! نعرہ تکبیر! پاکستان! نعرہ تکبیر! پاکستان! نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور ساتھ ہی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہر گلی کوچے میں خوشیوں کا سما ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے ملانے اور رشتہ داروں اور عزیزوں کو عید کی مبارکباد دینے، ان کے گھر آنے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دن کے آغاز پر تمام چھوٹے بڑے شہریوں میں نماز عید کے لاکھوں اجتماعات ہوئے۔ مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے خطبات میں اظہار ہمدردی، درگزر پر زور دیا گیا۔ ملکی یکجہتی، ترقی، استحکام اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد لوگوں نے تمام گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ نماز عید کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمام اہم عیدگاہوں، بڑی مساجد اور امام بارگاہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تعینات رہی۔ عید کے پہلے روز گھروں پر شیر خورما، سوئیاں، کھیر اور دیگر لذیذ میٹھے پکوانوں سے منہ میٹھا کرنے کے بعد اب لذیذ پکوانوں کا دور چل رہا ہے۔ خواتین نے صبح سے باورچی خانہ سنبھالا ہوا تھا۔ گھر آئے مہمانوں کی خاطر تواضع میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی جا رہی۔ لوگ بریانی، قومی کڑھائی، متنجن اور دیگر مزیدار کھانوں سے دل کھول کر انصاف کر رہے ہیں۔ خواتین اور بچوں نے عید کی جو تیاری کی تھی وہ بھی آج سامنے آ گئی۔ جہاں خواتین زرق برق ملبوسات، چونیاں پہنے بند سور کر تیار ہیں، وہیں مرد بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ نئے کپڑوں اور جوتوں کی شان ہی نرالی ہے۔ بچے بچیاں بھی چمکتے جلملاتے ملبوسات میں خوشی سے دمکتے چہرے لیے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوشی آج کی عید ہے۔ بچوں کی اپنے ہزاروں سے بڑوں سے عیدی وصولی کی مہم بھی جاری ہے۔ انہیں فکر ہے تو بس یہ کہ عیدی اڑائی کہاں جائے۔ کوئی آئس کریم کے مزے لے رہا ہے تو کوئی جھولے جھولنے اور من پسند چیزیں خریدنے میں مصروف ہے۔ عید ہو، تفریح نہ ہو تو کیسے ممکن ہے؟ من چلے عید کے پہلے روز گھومنے پھرنے نکل کھڑے ہوئے۔ تفریح گاہوں، پارکس، میلوں میں لوگوں کا رش ہے۔ کراچی میں لوگ عید کی خوشیاں دوبالا کرنے ساحل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کہیں اونٹ کی سواری کی جا رہی ہے تو کوئی سمندر کی لہروں سے کھیلنے میں مشغول ہے۔ لوگوں نے شام کو تفریح اور رات کے کھانے کے پروگرام بھی ابھی سے ترتیب دے لیے ہیں۔ ملک بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جڑواں شہروں کے مساجد، عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے 1000 سے زائد اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لاکھوں فرزندان اسلام نے شریک ہو کر خصوصی دعائیں کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں جڑواں شہروں کے 25,000 سے زائد فرزندان توحید نے نماز ادا کی۔ ان کو قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ سب مسلمانوں کو، تمام پاکستان جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کو عید مبارک۔ عید کے بعد شہریوں نے جہاں ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی، وہیں پورے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام بھی دیا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ سکون کے ساتھ عید گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ خوشی کے موقع پر ہم مسلمان بھائیوں کو عید مبارک کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو
फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको भी ईद मुबारक। ईद के मौका पर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि ईद की खुशियों में हम मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को नहीं भूले, जिनकी वजह से हम पुरअमन ईद की खुशियां मना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को तो जी सल्यूट है, और आज से नहीं बहुत अरसे से जब से हैं हम एक हालत जंग में हैं ऑलरेडी। मुसल्लह अफवाज को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का त्योहार जहां उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है, वहीं ये दिन हमें अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है। इस पुरमसरत मौका पर हम सबको चाहिए कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। कैमरामैन शाहिद इमरान के हमरा फैसल हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। ईद उल फितर के पहले दिन लोगों ने तफरी के लिए पार्क का रुख कर लिया। लाहौर में खुशगवार मौसम ने ईद की रौनकों को मज़ीद बढ़ा दिया है। बच्चे झूलों और खेल के मैदानों में भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। नौजवान और बुज़ुर्ग फैमिलीज़ के साथ ईद की खुशियों में शरीक हैं। इस हवाले से हमें मज़ीद बताएंगे हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ विद लाहौर सैयद इमरान शमसी। जी इमरान, मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज शहरियों ने ईद का पहला रोज़ और पार्कों का रुख कर लिया और खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आज की ईद कैसी मनाई जा रही है, आज की ईद कैसी मनाई जा रही है और आप बच्चों को लेकर कब यहाँ आए हैं और कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी है बागे जिना में और उसके बाद अब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इनको ईदी मिली है, एक बंदे से ईदी मिली है, अभी तक अभी बाकियों से नहीं मिली। आप बताएं आपको कितनी ईदी मिली है आपके हस्बैंड से? वो तो घर जाके पता चलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे ईद को एंजॉय किया जा रहा है। आप बताएं कि बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हैं और कितनी ईदी मिली है आपको और कैसा फील कर रहे हैं? आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो फिलहाल सुबह का टाइम है, इधर एंजॉय करने आए हैं, अभी मौसम को एंजॉय करने आए हैं हम लोग अभी। और आपको कितनी ईदी मिली है? अभी मिलनी ही है। बिल्कुल, आपको बताएं कि अभी जो पार्कों का रुख कर लिया है, लेकिन ईद अभी जो है मिलना बाकी है। कईयों को मिल चुकी है, कईयों को मिलनी है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं आपको कितनी ईदी मिली है? आप बताएं आपको कितनी ईदी मिली है? 500। और पार्क में आके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। आप बताएं आपको कितनी ईदी मिली है और आपको यहाँ पे पार्क पे आके कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे मौसम बहुत खुशगवार है। हम ईद की नमाज़ पढ़ने आए थे, उसके बाद हमें ईदी मिली और फिर हम लोगों ने। कितनी ईदी मिली आपको? 500। हाँ जी बिल्कुल, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ईद की खुशी को दोबारा करेंगे। और यहाँ पे बच्चे, बड़े और बुजुर्ग और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद के ईद के पहले दिन अवाम की बड़ी तादाद ने तफरीह के लिए पार्क्स का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने यह वाज़ेह कर दिया कि पार्क्स में सिर्फ फैमिली एंट्री की इजाज़त होगी। पार्क्स की सूरत हाल और इंतज़ामात के हवाले से तफसीलात जानेंगे न्यूज़ 1 के नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम से। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ईद का पहला दिन है और अवाम ने जो है वो हल्ला गल्ला करना शुरू कर दिया है, पार्क का रुख कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्करपड़िया में पाकिस्तान मोनूमेंट पर, और अगर आप देखें तो जो अवाम की बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान मोनूमेंट पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और CDA की तरफ से एक वाज़ेह हुक्मनामा जारी किया गया था, जिसके मुताबिक सिर्फ फैमिलीज़ को लेक व्यू पार्क, दामने को F9 पार्क और शक्करपड़िया पाकिस्तान मोनूमेंट पर जाने की इजाज़त दी गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता साल कुछ बदनज़मी सामने आई थी और उस बदनज़मी की वजह से CDA और मुतलका हुक्काम को ये एक्शन लेना पड़ा और उस पर सख्ती से अमल दरामद भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो पाकिस्तान मोनूमेंट और शक्करपड़िया में CDA के सुपरवाइज़र हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे और किस तरह अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जो फैमिलीज़ के लिए पार्क जो है वो कहा गया था कि ईद के दिनों में सिर्फ फैमिलीज़ को एंट्री की इजाज़त होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। बताइएगा, ये जो इतने बड़ी तादाद में लोग आपने बाहर रोके हुए हैं, ये क्यों रोके हुए हैं और क्या सिर्फ फैमिलीज़ को ही दाखिले की इजाज़त की जाए, किस तरह मुमकिन बना रहे हैं ये? हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वाज़ेह अहकामात हैं कि ओनली फॉर फैमिलीज़ जो है ना छोड़नी है पार्क में, और पाकिस्तान मोन शक्करपड़िया भी क्योंकि तफसीलात बता रहे थे फैसल हकीम, आपका शुक्रिया।
عید خوشیوں کا تہوار ہے اور مٹھائی اس کو خوشی بڑھا دیتی ہے۔ ننکانہ صاحب میں عید پر مٹھائی کی دکانوں پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری اپنی اپنی پسند کی مٹھائیاں خرید رہے ہیں تاکہ میٹھی عید پر مہمانوں کی تواضع میٹھے سے کی جا سکے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نیوز ون کے نمائندہ شیخ محمد انس سے، جو اس وقت ایک مٹھائی کی دکان پر ہی موجود ہیں۔ جی شیخ انس، بتائیے گا۔ جی بالکل، نیوز ون کے ناظرین کو جو ہے عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج عید کا دن ہے اور میٹھی عید ہے اور مٹھائی کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ آج جو شہری ہیں ننکانہ صاحب کے شہریوں نے جو ہے مٹھائی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں جو یہاں پر مٹھائی لینے کے لیے آئے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ جی، عید الفطر ہو اور مٹھائی نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ مٹھائی کے ساتھ ہیں، جہاں پہ خوشیاں وہاں پہ مٹھائی ہو۔ تو میں اس وقت مٹھائی لینے آیا ہوں اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے۔ ہم جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے گھر، ہم چھوٹی بیٹیوں کے گھر جائیں گے، مٹھائی لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب کو چاہیے کہ مٹھائی، عید الفطر جو ہے وہ بڑی خوشی کا دن ہے اور اس دن سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور خوشیوں میں مٹھائی تو ضروری ہوتی ہے نا، اس لیے تو ہم مٹھائی لینے آئے ہیں۔ شکریہ شیخ محمد انس تفصیلات کے لیے۔ کراچی میں شہریوں کی جانب سے عید الفطر پر اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی اور پھول چڑھا رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نیوز ون کے نمائندہ ملک آفتاب سے، جو اس وقت کراچی کے 150 سالہ قدیم علی باغ باوا پٹ قبرستان میں موجود ہیں۔ جی آفتاب، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر جو ہے خوشیوں والا ایک تہوار ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد جب عید کا دن آتا ہے تو لوگ جو ہے نہ صرف نماز عید ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں، انہیں وہاں پر جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور یہ بڑا انہیں تسکین کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے جو گھر کی رونق ہوتے ہیں، بزرگ والد ہو جائیں، والدہ ہو جائیں یا کوئی بھی گھر کا جو فرد جو اس درمیان میں نہیں ہوتا، ان کے لیے وہاں پر گھر والوں کے جانا وہاں پر بڑے تسکین کا۔ جس وقت میں موجود ہوں علی باغ یہ قبرستان ہے اور 150 سالہ پرانا یہ قبرستان ہے لیاری کے علاقے میں، اور اس حوالے سے یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے بہت زیادہ رش تھا۔ نماز کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے، وہاں پر فاتح خوانی کرتی ہے۔ یہاں پر علاقے کے رہائشی موجود ہیں، معصوم چاچا صاحب، ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ یہ کتنا پرانا قبرستان ہے اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید پہ کافی رش ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سب سے پہلے تو نیوز ون کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے علی باغ قبرستان یہاں تشریف لائے۔ یہ 150 سال قبل پرانا قبرستان ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کری ایرانی حال میں۔ پھر یہاں پر انہوں نے جتنے بھی نمازی تھے، سولجر بازار، لیاری کھڈا مارکیٹ اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے جو مومنین تھے، انہوں نے یہاں شرکت کری، اپنے جو مرحومین تھی ان کے یہاں فاتحہ خوانی کی۔ میں خود یہاں اپنی والدہ اور تمام اپنے اکابرین کی جو ہے وہاں فاتحہ خوانی کرنے آیا ہوں۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی طرح ہی رش تھا، جیسا کہ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ملک آفتاب۔ ٹنڈو الیار میں عید الفطر پر شہریوں کی بڑی تعداد نماز عید کی ادائیگی کے بعد اپنے پیاروں کی قبور پر فاتح خوانی کے لیے قبرستان پہنچ گئی۔ شہریوں کا اپنے پیاروں کی قبور پر فاتح خوانی اور پھول چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر قبرستانوں میں رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نیوز ون کے نمائندہ طارق حمید عباسی سے۔ جی طارق عباسی، آگاہ کیجیے گا۔ جی پہلے تو نیوز ون کے ناظرین کو جو ہے کہ عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع ٹنڈو الیار میں بھی جو ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ٹنڈو الیار کے شہریوں نے جو ہے کہ اب رخ کیا ہے قبرستانوں کا، جہاں پر جو ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کے جو ہے کہ پھولوں کی پتی نشاور کر رہے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے یہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چلوں کہ عید کی نماز ادا کری تو ایک دوسروں کو مبارکباد دی، اس کے بعد جو ہے کہ ٹنڈو الیار کے شہری جو ہے کہ قبرستانوں کا رخ کر لیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈو الیار کے تاریخی قبرستان ہے یہ گلگیبی، جہاں پر بڑی تعداد جو ہے کہ ٹنڈو الیار کے شہریوں کی موجود ہے، جہاں پر وہ اپنے پیاروں کی قبر پر آ کے انہوں کی پتیاں، پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے یہاں پہ دعا بھی مانگی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ شجاع آباد میں عید کے موقع پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ گلی محلوں کے علاوہ پارکس اور قبرستان کو بھی صاف کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ نیوز ون عبد المالک آرائی سے۔ جی عبد المالک آرائی، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح شجاع آباد میں بھی عید الفطر نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے
सुतरा पंजाब के हवाले से। तो सुतरा पंजाब की टीमें जो ईद के दिन भी जो है अपने काम में मसरूफ दिखाई देती हैं। उन्होंने ईद के दिनों में 2-3 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। जो असिस्टेंट कमिश्नर है और जो रीजनल मैनेजर है सुतरा पंजाब, वो भी इनकी मॉनिटरिंग करें। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे पूछेंगे। अच्छा बताइएगा, ये सुतरा पंजाब के हवाले से किस तरह मुतमईन है, क्या सफाई हो रही है आपके शहर में? माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन निज़ाम हुआ है। ईद से पहले ही बड़ा बेहतरीन निज़ाम था। ईद पे अपने बच्चों को ईदी वगैरह मिल के ये यहाँ पर आ गए हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी सफाई की हुई है। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को और यहाँ की सारी मैनेजमेंट को, अपना एसी साहिबा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और तहसील इंतज़ामिया शुजाबाद और सुतरा पंजाब की टीमों का शुक्रिया शहरी अदा कर रहे हैं और उनका ये बहुत कहना शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने कौम को मुबारकबाद पेश की और अपने खुसूसी पैगाम में मोहब्बत, इत्तेहाद और एहसास ज़िम्मेदारी पर जोर दिया। उनका ये भी कहना था कि उम्मत मुस्लिमा कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। गज़ा में मज़ालिम इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरान की सूरत हाल भी बाइस तशवीश है। हमें नफ़रतों के ख़ात्मे और मोहब्बत और रवादारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करना होगा। आप सबको, आपके अहले खाना को बहुत बहुत ईद उल फितर की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के तवस्सुल से हमारे वालिदैन को, बुज़ुर्गान को, बच्चों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तरक्की दे। बहुत खुशी का मौका है, लेकिन साथ साथ इस वक्त जो पूरे खित्ते की एक सूरत हाल है, पूरी दुनिया एक जंग की लपेट में, मुस्लिम उम्मा पे एक बड़ा सख्त इम्तिहान है। गज़ा में, फ़लस्तीन में, ईरान में छोटे बच्चों की शहादतें हो रही हैं। तो इस वक्त मैं नहीं समझता कि हमें ये ईद की खुशी जो है वो किसी भी मुसलमान के लिए उस तरह की खुशी है जिस तरह की होनी चाहिए। और यही दुआ गो हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा एक पेज पे हो और पूरी दुनिया के अंदर अमन के लिए आवाज़ उठाई जाए और ये दुनिया दोबारा अमन का गहवारा बने और ये खेलते खूबसूरत प्यारे फूल जैसे बच्चे वापस अपनी ज़िंदगियों में हंसें, मुस्कुराएं और अपने वालिदैन के साथ खुशियों की वाली ईद मना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फितर के रोज़ कराची में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। तेज़ बारिश के सबब खुले मकामात पर होने वाले नमाज ईद के इज्तिमात मुतासिर हुए, जबकि मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद की हुदूद तक महदूद हो गए। गुरु मंदिर, शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, लसबेला और किरदोनवा में तेज़ बारिश हुई। गुलशन हदीद, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, क्लिफ्टन में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जिन्ना टर्मिनल पर सबसे ज़्यादा 13.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 11.4, PAF मसरूर बेस पर 11 मिलीमीटर बारिश हुई। साथ ही ओल्ड एयरपोर्ट में 10.8, नाज़माबाद में 9.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 8, कोरंगी में 4 और सुल्तानी टाउन में 2.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मौसम के हवाले से अहम अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, रावलाकोट, बाग हवेली, कोटली और मीरपुर में बारिश का इम्कान है। इसी तरह गिलगित, स्कर्दो, हुंजा, इस्तोर, ग़ज़ा, द्यामर, गांचे और शगर में बर्फबारी की पेशगोई है, जिससे बालाई इलाकों में दर्ज हरारत मज़ीद कम हो सकता है। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के है। इन शहरों में ननकाना कसू, फैसलाबाद, झंग, टूबा टेक सिंह, सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन शामिल है। चकवाल, जहलम, अटक, मरी, भक्कर, खुशाब और मियांवाली में भी बारिश का इम्कान है। ईरान ने अमरीकी और बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया। इजराइल पर भी मिसाइल दाग दिए। तल अवीव के 25 मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान के डेगो गार्शिया बेस को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान ने 2 दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए, लेकिन कोई मिसाइल हदफ को निशाना ना बना सका। एक मिसाइल दौरान परवाज गिरा, जबकि
अमरीकी बहरी जहाज ने दूसरे मिसाइल को रोका। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 67वीं लहर में हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने बताया कि इजरायली शहरों पर खुर्रम शहर और गैदर मल्टीवार हेड मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। उधर इराक में अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमरीका और इजराइल के ईरान पर हमले 22वें रोज में दाखिल हो गए। ईरान पर अमरीका और इजराइल ने ताज़ा हमले किए, जिनमें ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान और कुल समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद ईरानी शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। साथ ही दूसरी जानिब अमरीकी अफवाज ने आबनाए हुर्मज में भी ईरानी ड्रोन्स और नेवी के जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीका ने आबनाए हुर्मज को क्लियर करवाने के लिए नया ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसमें उसने अपने निचली परवाज करने वाले A-10 तैयारे और अपाची हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। अमरीका ने समंदर में फंसे ईरानी खाम तेल की फरोख्त की आर्जी तौर पर इजाज़त दे दी है। अमरीकी महकमे खजाना का यह भी कहना है कि नई लाइसेंस के तहत समंदरों में मौजूद जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी और ये नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। अमरीकी महकमे खजाना ने यह भी कहा है कि इस वक्त समंदर में मौजूद ईरानी तेल पर से पाबंदी आर्जी तौर पर हटाई जा रही है, जिससे तेल की कीमतों को कम रखने के लिए ये तेल बेशतर ममालिक को फ़रोख्त किया जा सकता है और साथ ही मुख्तसर मुद्दत के लिए इस इजाज़त से तकरीबन 14 करोड़ बैरल तक आलमी मंडियों के लिए दस्तयाब हो सकेगा। अमरीकी महकमा खारजा का ये भी कहना है कि इजाज़त सिर्फ उस तेल तक महदूद है जो पहले से ट्रांजिट में है, नई खरीदारी या पैदावार की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब ईरान का ये भी कहना है कि पाबंदियाँ ख़त्म करने के बाद सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है, आलमी मंडी में फ़रोख्त के लिए कोई तेल नहीं। अमरीकी फैसला खाम तेल की कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन टूट चुका है। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने नए ईरानी साल को बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का साल करार दे दिया। मुस्तफा खामनाई ने ईरानी कौम के नाक पैगाम में कहा कि हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुक्काम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करे, सालिसी के लिए तैयार रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कहना था कि हमारे लिए पड़ोसी बहुत अहम है। दुश्मन पड़ोसी ममालिक और हमारे ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। इजराइल, ईरान और हमसाया ममालिक में इख्तलाफात पैदा करने के लिए फॉल्स फ्लैग हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा है। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम दिफाई इक़दामात कर रहे हैं। जब तक ज़रूरी होगा हम अपने हिफाजत जारी रखेंगे। जापानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये कहना था, लगता नहीं कि अमेरिका अपनी जारियत ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी। उनका कहना था, ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया। अमेरिकी और इजराइली इक़दाम गैर कानूनी, बिला जवाज़ और बिला इश्तिहाल जारियत का अमल था। हम दिफाई इक़दामात कर रहे हैं। जब तक ज़रूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। अब्बास अराग़ची ने कहा, हमें जंग बंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़िश्ता साल वाला मंजरनामा दोबारा दोहराने के हक़ में नहीं है। जंग को मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि यह सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो में दूरियां बढ़ने लगी? सदर ट्रंप नेटो पर फिर बरस पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दिया। सोशल ट्रुथ पर कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। नेटो एक एटमी ताकत होने के बावजूद ईरान को रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब नेटो तेल की बुलंद कीमतों का रोना रो रहे हैं। नेटो आबनाए हुर्मस को खोलने की मदद नहीं करना चाहता, जो कि एक सादा सी फौजी मश्क है।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रम्प ने यह भी कहा कि हम ईरान से बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं बचा। अब कोई ईरान की क़यादत संभालने के लिए तैयार नहीं है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, और ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो इस्तेमाल करते। ईरान मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा करना चाहता था। मीठी ईद की मीठी रिवायतें आज भी जिंदा है। जालम के शहरियों में मिठाई बांटने की रिवायत आज भी बरकरार है। मिठाई की दुकानों पर कौन सी मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, ये जानेंगे न्यूज़ वन के नुमाइंदा शहरियार अली राजा से। जी शहरियार अली राजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा है कि मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी सी लगती है, इसीलिए जेलम के शहरियों ने बड़ी तादाद में स्वीट शॉप्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे रोड पर एक स्वीट शॉप पर, जहाँ पर लोग अपनी मनपसंद मिठाइयाँ और केक खरीदते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शॉप के ऑनर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि आज के दिन लोग क्या पसंद करते हैं और क्या ज्यादा खरीदा जा रहा है। जी सर बताइएगा आज क्या पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और माशाल्लाह ईद उल फितर का जैसे हमारा आज मौका है, इस पे सब अहलियान जो हैं वो पहले अपने ईद की नमाज अदा करने के बाद ईद के अपने प्यारों के लिए मिठाइयाँ लेके जाते हैं, और उसके साथ केक्स हैं हमारे पास, वो अपने घर वालों के लिए, अजीज़ व क़ारिब के लिए लेके जाते हैं। जी जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि लोग ज़्यादातर मिठाइयाँ पसंद करते हैं और वही। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।